Hello everyone. In our economics, for lesson number 15 from your textbook, we completed explanation of almost 4 videos. So this will be my 5th video for this lesson. So let us go through the lesson and understand the remaining 2 topics as well. Okay. Now, methods of allotting allocations of resources. Every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources. Allotment of resources is done by 2 methods. We can tell availability of resources. ओके हमें लोगों के लिए रिसोर्स अवेलेबल करना है, वो 2 तरह से हो सकते हैं. वन इज़ मार्केट मैकेनिज़्म एंड सेकेंड इज़ सोशलिस्ट मैकेनिज़्म. Both the systems are opposite to each other. By mingling both systems, many other methods have developed. Every country accepts one or the other method as per their requirement. Following is the explanation of methods of allotment of resources. अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब 2 मेथड्स को अगर हम मिंगल करके काम करने की कोशिश करें तो वी विल गेट सो मैनी अदर आइडियाज़ टू अलॉट रिसोर्सेज to different areas or different countries, right? So let us read about market system. See, before I begin reading about market system, I can say you can underline the word market system and you can write on the side concerned more with profit. Market system ज़्यादा से ज़्यादा और I can tell मार्केट सिस्टम में जो भी कंपनी, जो भी कंट्री है, इट वर्क्स मोर टू गेन प्रॉफिट. ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करने के लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से कई पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हो जाते हैं. दैट इज़ कंपनी ट्राई टू बी बेस्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि वो जितना बेस्ट रहेंगे कस्टमर उतना उन लोगों को अच्छा समझेगी और कस्टमर उतने उनके प्रोडक्ट लेगी. Okay, we'll be studying in detail over here only. So let us begin. Market system. The nation like America, Japan, etc. have made their economic development through market system. Market system is also called capitalist system. In this method, the process of resource allocation is done on the basis of profit scope. In this system, the production and its related activities profit is at center. सी प्रोडक्शन कीजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए, स्टॉक कीजिए, बट इन मार्केट सिस्टम में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में प्रॉफिट को मेन सेंटर में रखा जाता है. अमेरिका और जापान ने अपनी इकोनॉमिक को डेवलप किया है बाय मार्केट सिस्टम. मतलब अमेरिका और जापान जो काम करता है वो मार्केट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है. Now, market is completely free in this system. Okay, sorry. People invest in those industries where they find more scope of profit. See, लोग तो obviously वहीं पर invest करना अच्छा समझेंगे जहाँ पर से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा. Okay, so where they gain more profit, people will be interested to invest in that country, that company. सो मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में मार्केट कम्प्लीटली फ्री होता है. दैट इज़ देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सिस्टम. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट मेक एनी रोल इन दिस मेथड. Competition plays a vital role in the market. In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. Because of this method, many new researches are done and new methods of production are created. So, production is the maximum. Because of this, fast economic development of the countries takes place. Thus, competition controls the whole market like an invisible hand. As a state does not interfere, this system is known as a free economy. Okay, अब यहाँ पर क्या है, सी मार्केट सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए मोटिव होता है ओनर का, तो उसकी वजह से मार्केट सिस्टम में कंपटीशन बहुत होता है. ओके, कंपनीज हैव टू फेस
strong competition from other companies as well. Okay, now competitive market में owner tries to increase, or we can tell owner have to increase working capacity to the great extent. ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा. सो ओनर इसी लालच में ज़्यादा काम करने का अपने लेबर्स को उकसाता है, सो दैट जितना काम उसके लेबर्स करेंगे उतना उसको प्रॉफिट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी की वजह से कई न्यू रिसर्चेस होते हैं एंड कई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट किए जाते हैं. दैट इज़, पहले छोटी मशीनरी से प्रोडक्शन, फिर हाईटेक मशीनरी से प्रोडक्शन, एंड देन आजकल तो वी कैन टेल बाय कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन होने लगे हैं. सो दैट, क्योंकि ह्यूमन बींग्स काम करेंगे तो दे मे वर्क स्लोली बिकॉज दे हैव टू वर्क विद देयर 2 हैंड्स. But if you talk about working, setting up machines and working, तो obviously it will work more and more and more, right? Then further, so अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं so that सामने वाला जो हमारे कंपटीशन में है वो हमसे कहीं आगे ना निकल जाए. Because of this fast economic development of the country takes place. इसी वजह से, ये कॉम्पिटिशन्स की वजह से कंपनीज बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है कंट्री का. नाउ एज दिस सिस्टम, तो कंपटीशन जो है वो इनविजिबल हैंड की तरह भी काम करता है. दैट इज़, फॉर एग्जांपल के इफ़ आई एम हैविंग कंपनी एंड मेरे सामने सेम मेरे प्रोडक्शन के जैसे ही प्रोडक्शन करते हुए दूसरी कंपनी भी सेटअप होती है, तो आई हैव टू टेक केयर अबाउट के मेरे प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा बिकें. अब मेरे प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिके तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अप टू हाउ मच एक्सटेंट कस्टमर कैन स्पेंड मनी. इट्स नॉट दैट कि अब मेरे कंपटीशन में कोई आ गया है तो मैं अपना जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंसिव अमाउंट में बेचना शुरू करूं, क्योंकि अगर मैंने एक्सपेंस सडनली बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली दिस कंपनी वाला विल नॉट इंक्रीज देयर अमाउंट एंड पीपल विल परचेज दिस कंपनीज प्रोडक्शन, राइट. वेयर एज मेरी कंपनी को लॉस हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं बोथ द कंपनीज गो साइमल्टेनियसली. दे डू प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एंड इनफ क्वांटिटी दे सप्लाई इन मार्केट, बट उनका जो प्राइस होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. ओके, प्राइस ऑलमोस्ट सेम रखते हैं वो लोग, सो दैट कस्टमर उनके प्रोडक्ट को महंगा ना समझे. जब प्राइस सेम होगा तो दे विल गो ऑन क्वालिटी. लेकिन अगर प्राइस में ह्यूज डिफरेंस होगा, मेरी कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे और सामने वाले कंपनी सेम प्रोडक्ट लेस में करेगा, तो ऑब्वियसली पीपल विल डेफिनेटली ट्राई टू परचेज लेस अमाउंट वाला प्रोडक्ट. बट इफ़ प्राइस विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर तो पीपल विल डेफिनेटली गो विद क्वालिटी ऑल्सो, कि क्वालिटी देखते हैं किसकी अच्छी है. यस, सो कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो ओनर्स को, कंपनी के ओनर्स को कंट्रोल में रखते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. अब इनके फीचर्स क्या हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म. Ownership of resources of production is either individual or private. See, as government interference is not there, so obviously all these companies are included as private companies, and owner can be one single owner or group of people, those who work in partnership. Profit is at the center of economic activities in market system. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज़ इन कंपनीज़ में जो भी उनका पैसे का लेन देन है उनके बीचों बीच प्रॉफिट इज़ प्लेइंग द मेन रोल, बिकॉज दे आर हैविंग मेन मोटिव टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट ओनली. कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर चॉइस. सो कंज्यूमर्स, ड्यू टू competition, companies go on producing goods and goods. So due to that, consumer get good opportunities of choice. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ नॉट देयर इन दिस सिस्टम. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग.
से लाइक सपोज इफ़ आई एम हैविंग वन कंपनी, मेरी प्रोडक्शन हो रही है, अब वो प्रोडक्शन के लिए आई हैव 3 एरियाज़ वेयर आई हैव टू सप्लाई, वन इज़ चिकली, वन इज़ नवसारी एंड वन इज़ सूरत. तो व्हेन आई एम डूइंग प्रोडक्शन, तो आई विल डेफिनेटली सप्लाई माई प्रोडक्ट फर्स्ट टू सूरत बिकॉज सूरत इज़ बिग सिटी देन दीज टू. यस और नो. अब सूरत का जो डिमांड होगा, अगर मैं वो जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई करूँगी, आई विल गेन गुड प्रॉफिट, राइट, रादर देन फुलफिलिंग डिमांड ऑफ चिकली. यस और नो. अब सूरत के बाद आई विल ट्राई टू फुलफिल डिमांड ऑफ नवसारी, राइट, मेरी प्रोडक्शन का सप्लाई नवसारी में होगा. एंड थर्ड प्रेफरेंस आई विल गिव इट टू चिकली. यस, क्योंकि यहाँ पर लेस पॉपुलेशन है, यहाँ पर लेस डिमांड है. बट इन सूरत एज देर इज़ अ मोर पॉपुलेशन, ओवर देर इज़ अ मोर डिमांड एज वेल, राइट. सो जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मैं तो मेरे प्रोडक्ट वहाँ पर पहले दूंगी. यस. देन इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड. तो इकोनॉमिक डिसीजन, सी मशीनरीज हमें सेटअप करनी है. सी इफ़ अवर कंपनी, अगर मेरी कंपनी अच्छे से अच्छा मतलब प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ रहा है और वी कैन टेल प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ रहे हैं मार्केट में, दैट मीन्स आई हैव टू इंक्रीज माई प्रोडक्शन नाउ. एंड इफ़ आई सी के आई हैव टू इंक्रीज माई प्रोडक्शन but with small machineries I will not able to increase my production and fulfill demands on time. So what I will do, I will see if I will increase production and I will gain more profit, then I will definitely do some investment in purchasing big and high tech machines, right. तो वो investment that is economic decisions, money related decisions जो हैं वो सब प्राइस को माइंड में रखते हुए ही लिए जाएंगे. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम. सी अगर बेनिफिट्स हैं तो वहाँ पर लिमिटेशंस भी होंगे. बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट आर बेनिफिट्स. इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम. सी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता तो इंडिविजुअल जो है ही कैन गो ऑन मेकिंग हिज ओन टाइमिंग्स, हिज ओन रूल्स, हिज ओन स्टॉक, हिज ओन प्रोडक्शन, राइट. सो ही इज़ हैविंग इकोनॉमिक फ्रीडम. कितना इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से कितना मैं पर्सनल यूज़ के लिए रखूँगा, कितने मैं सैलरी में इंक्रीज़ करूँगा, कितना मैं बोनस दूंगा अपने वर्कर्स को, कितने वर्कर्स हायर करूंगा, ये सब वो इंडिविजुअल के हाथ में होता है फ्रीली. रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शंस आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली. सो रिसोर्सेज दैट इज़ प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जाती है. अबंडेंट प्रोडक्शन में बी डन, मच प्रोडक्शन में बी डन. ओके, अब जितनी ज़्यादा डिमांड है, डिमांड फुलफ़िल जल्दी से जल्दी हमारी कंपनी डिमांड फुलफ़िल करेगी तो हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. और अगर हमारी कंपनी के जैसी कोई और भी कंपनी है तो हमें और तेज़ प्रोडक्शन का काम करना होगा सो दैट वो कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में ना रख दे हमसे पहले. सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी की जा सकती है. न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी. दैट इज़ हमेशा नए मार्केट में नए प्रोडक्ट कंपनी लाती ही रहती है. लाइक अगर बालाजी एज वी डिस्कस्ड, तो बालाजी में सिर्फ कुरकुरे नहीं होते, देर आर सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ जंक फूड कम्स फ्रॉम बालाजी, राइट. तो हर एक दिन कुछ ना कुछ नया कंपनी मार्केट में लाती ही रहती है सो दैट पीपल शुड रिमेन इन टच विद कंपनी. एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स फास्टर, जिसकी वजह से लोग उस कंपनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. दैन दे स्टार्ट परचेजिंग मोर गुड्स फ्रॉम दोज कंपनीज. क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. सी कॉम्पिटिशन होगा तो मुझे भी ऐसा होगा कि नो, आई हैव टू डू बेटर, ओके, और आई हैव टू बी दी बेस्ट इन द मार्केट, तो ही मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे. ओके, तो कंपनी ओनर जो है उसको भी यही होता है कि अगर मेरी कंपनी के सामने सिमिलर प्रोडक्ट की 2 और कंपनीज़ आ गई हैं तो मतलब हम 3 कंपनीज़ कंपटीशन में हैं, तो मुझे कंपटीशन में पीछे बिल्कुल नहीं रहना. सो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव क्वालिटी
ऑफ माई प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर, राइट। अब ये तो रहे बेनिफिट्स, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशंस क्या है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स, मार्केट सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट. There are many disadvantages and limitations of it, which are as follows. First one, because of keeping profit in the center of the production, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirements is neglected or reduced. See, ओनर को हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। अब ओनर को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है तो ओनर को पता है एक्सपेंसिव चीज़ें, जो लग्जरियस थिंग्स हैं वही एक्सपेंसिव चीज़ें बिकेंगी मार्केट में, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जितनी महंगी चीज़ होगी उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वेयरएज जिसकी वजह से बेसिक नीड्स जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है। ओके, नाउ इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ, इफ़ माई कंपनी गोज़ ऑन परचेजिंग AC, ओके, AC की भी बात छोड़िए, राइट नाउ वी कैन गेट फैन इन विच light is also fixed and that is also on remote control. Okay, might be very expensive, right? अगर हम वो फैन लें, फैन विद रिमोट कंट्रोल, ओके, अगर हम वो फैन लें तो ऑब्वियसली कंपनी वाला विल ऑल्सो गेट गुड प्रॉफिट फ्रॉम दैट, राइट? बट दिस फैन कैन नॉट बी अफोर्ड बाय पुअर पीपल। पुअर पीपल को क्या चाहिए? पुअर पीपल को तो एक सिंपल फ़ैन चाहिए, राइट? दे नीड सिंपल फ़ैन। अब सिंपल फैन में कॉस्ट ऑफ 700 और 8 और अप टू 1000, ओके, लेकिन वेरेज दिस फैन में गो राइज अप टू 5000 to 8000 रुपीज़, राइट? इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो मार्केट सिस्टम में सारी कंपनीज प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, तो दे विल कहीं ना कहीं दे विल इग्नोर डिमांड ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि बेसिक नीड जो है एक फ़ैन की नीड है, वो फ़ैन तो वो लोग लग्जरी आइटम्स पर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लग्जरी आइटम की प्रोडक्शन वो लोग करेंगे उनको ऐसा कि हमें उतना प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड्स हैं वो नहीं प्रोड्यूस हो रही। ओके, बेसिक नीड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन उनकी लेस हो रही है, राइट? देन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। सी, अगर तो स्टेट गवर्नमेंट अगर तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर टाइम वाइज आकर कंपनी में विज़िट करेगा और इंस्पेक्ट करता रहेगा कि वेदर दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली और नो, राइट? बट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनीज जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं होता और वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं आते, तो कहीं ना कहीं दे पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब more than required. I can give you example over here कि the people may go on throwing their wastage of industries anywhere, either in water bodies or on empty land. तो उससे क्या होगा? उनसे नेचुरल रिसोर्सेज तो वेस्ट होंगे ऑब्वियसली, ओके। वाटर बॉडीज़ में अगर वो लोग वेस्ट डालेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वाटर पॉल्यूशन। देन इफ़ देयर विल बी नो प्रॉपर arrangement to take out the smoke from the factory, that is there should be huge chimneys constructed, but अगर ऐसा नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम, तो भी environment will be harm with that smoke, right? तो that is what के पॉलिसीज़ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार ओनर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी वेस्ट कर देते हैं। Due to lack of knowledge and ignorance about the market, consumers are exploited. Okay, see, मार्केट सिस्टम है तो मार्केट सिस्टम में हमेशा ओनर को कंपनी की प्रोडक्शन के लिए मार्केट को स्टडी करते रहना चाहिए, राइट? लेकिन कई कंपनीज क्या करती हैं कि वंस देयर नेम इज़ गुडविल अच्छी बन जाती है कंपनीज़ की, दैट इज़
people know brand of that company's products and then they may cheat them कि अभी हमारा नाम अच्छा बन चुका है, अगर हमने मार्केट में एक आध प्रोडक्ट गलत रख भी दिया, गलत इन द सेंस के नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ओके, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमने रख भी दिया और लोग सिर्फ हमारे नाम की वजह से वो प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग कस्टमर्स को चीट करेंगे, राइट। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज़ इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। सी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, क्योंकि मेन मोटिव ऑफ कंपनी इन मार्केट सिस्टम इज़ टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट और इनकम जिस तरह से वो अर्न करते हैं उसी की बेस पर वो लोग अपने वर्कर्स की इनकम को डिसाइड करते हैं, ड्यू टू विच वन कैन सी ग्रेट डिस्पैरिटी इन इनकम। ओके, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है वर्कर्स की इनकम में, वर्कर्स की सैलरी में, राइट। बिकॉज अगर प्रॉफिट, कई ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सैलरी और बोनस वगैरह होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होगा तो बोनस बिल्कुल नहीं होगा और सैलरी भी लेस अमाउंट में होगी, राइट। सो मेन मोटिव ऑफ दोज कंपनीज ऑलवेज रिमेन विद प्रॉफिट। There is a fear of monopoly, economic instability, exploitation of labor, etc. See, there is a fear of monopoly. मान लीजिए सपोज नाउ बालाजी इज़ वन कंपनी, तो बालाजी जो कंपनी है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं इन बालाजी कंपनी विच काइंड ऑफ कुरकुरे और सम स्नैक्स आर प्रिपेयर्ड, राइट। वो स्नैक्स प्रिपेयर करने के लिए दूसरी कोई कंपनी नहीं है, दैट मीन्स बालाजी इज़ हैविंग मोनोपोली, राइट। बालाजी मोनोपोली में है क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई नहीं होगा, अगर उनके सामने सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई नहीं होगा तो, ओके, तो मोनोपोली का डर रहेगा, क्योंकि अगर बालाजी को लगे कि मेरी कंपनी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है तो बालाजी में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्नैक्स, 5 रुपीज़ पैकेट में इट गोज़ विद 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ पैक, राइट। तो अगर मोनोपोली होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ कर सकता है प्रोडक्ट्स के। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, दैट इज़ वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी होगा, दैट इज़ वर्कर्स की सैलरी में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना, दैट इज़ ऑल इंस्टेबिलिटी ही होगी। वन टाइम के प्रॉफिट को अच्छे से कंप्लीटली इन्वेस्ट कर देना, दूसरी टाइम में जो प्रॉफिट हुआ उसको उसमें से ज़्यादा परसेंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लेना और थोड़े परसेंट को इन्वेस्ट करना, दैट ऑल गोज़ विद इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक, अंडरस्टूड। सो लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, benefits of market mechanism, features of market mechanism and market system, right. These 4 parts, that is the first topic of methods of allotting of resources का first method we did in this video. Now in next video we'll be doing with socialist system, but in next video, not in this. Please go through all 5 videos and study and understand each and every topic well, as this is your very first lesson of economic, okay. Understand all the topics well, see the videos twice and thrice so that you people can understand the topics well. Take care everyone, study properly at home please, bye bye.